Hello dear students, welcome you all. In this lecture, I am going to discuss about the SU2 symmetry in particle physics or high energy physics, right? So in the earlier lectures, I have discussed about the unitary groups and SU2 in details, right? I have also discussed what is the role of symmetry in physics and what are discrete symmetry operators. We have a thorough discussion on all these topics. Now I'm applying this concept of symmetry and SU2 in physics, and particularly here in high energy physics or particle physics, right? So first of all, I want to recall the concept of unitary groups and SU2. So when I discussed SU2, we have seen that SU2 group was basically a collection of unitary matrices of order 2 by 2. They were square matrices with determinant 1 condition that were making them special, and unitary matrices because they were satisfying the condition of a unitary matrix, right? So in that lecture we have seen that when I discussed SU2, then SU2 have three generators, right? And these three generators were three polyspin matrices. These were sigma x is equal to, if I write down them, 0 1 1 0, sigma y is equal to 0 minus iota and iota 0, and sigma z is equal to 1 0 0 minus 1, right? These were named there as the three generators of SU2 group, right? And we have one identity matrix in that group. So these were the SU2 matrices, four matrices and three generators we're calling as them. Now I want to tell you what is the meaning of generator here, right? You look at this pic of a triangle and it is an equilateral triangle, right? So it means here the angle is a 60 degree. All the angles are 60 degree, right? Now if I I have given the name ABC to this triangle, three vertices of this triangle. If I remove these names and then I rotate this triangle by an angle of 120 degree, then I will get this configuration, right? And that configuration is exactly same to this one. Then if I again rotate by 120 degree, again I will reach at the same configuration, right? And if then I again rotate 120 degree, I will reach back in the same configuration. But for my convenience, if I write ABC here, then after three rotations I will be back here to the original position. Now these three rotations, or I can say these four triangles, they are identical in all sense, same appearance, no change in their appearance, they are exactly same, right? So we can say that this triangle, this triangle that I am representing here, equilateral triangle, it has a rotational symmetry, right? हमने rotational symmetry के बारे में भी पढ़ा है sorry, rotational symmetry है इसमें, और after every rotation of 120 degree, it is getting the same appearance, right? We can see here. So ये जो अलग-अलग हमें possibilities मिल रही हैं, if we want to differentiate them, then we must have a operator that can change from here to here, and here in this case it is the rotational operator, we can say rotation जो कि हम कर रहे हैं. तो कितनी बार? 3 बार. It means we can say this जो symmetry operation है यहाँ पे, वो क्या हुआ? Symmetry operation is here rotational operation, right? The operation that we are applying is rotation operation, and how many times? 3 times. So we can say that this system has 3 generators, right? Why I am calling them as generators? Because the 3 symmetry operators हैं, operations हैं, they are giving me the different configurations of the system that I am calling as the fundamental representation of this group.
ये जो ग्रुप बन रहा है 4 ट्राइंगल्स का, ये दिस वी कॉल एज द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन, राइट? एंड ये how we are getting it? We are getting it by applying a symmetry operation, and the symmetry operation is a rotational rotation operation, right? And we are doing rotation by 120 degree. So 3 बार हमने किया 120 120 120, right? Yeah, I can say 120 240 360. So we have 3 generators which can produce this fundamental group, right? This, and these 4 possibilities are known as the फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्रुप, राइट? तो ये आप किसी भी जिस ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो उस ग्रुप की अलग अलग अपीयरेंस आपको मिल रही है, और जो कि सारी की सारी क्या है, आइडेंटिकल। सिमेट्री का मतलब ये है कि व्हेन आई एम अप्लाइंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, वेदर इट इज ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, इट इज अ रोटेशनल ऑपरेशन, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, आई एम गेटिंग द सेम काइंड ऑफ सिस्टम, राइट? सिमेट्री इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सो अब जो अलग अलग पोजीशंस बन रही हैं सिस्टम के अंदर, जैसे ये ट्राइंगल का केस है, दीज आर द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्रुप। एंड अगर मैं एक मेंबर से दूसरे में जाना चाहूं, दूसरे से तीसरे में जाना चाहूं, देन आई नीड सम जनरेटर्स। जनरेटर्स आर बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर। सो हियर हमारे पास कितनी होंगी? 3 जनरेटर्स, 3 सिमेट्री ऑपरेशंस वी कैन अप्लाई, 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो यही काम यहां पे जो हमारे 3 जनरेटर्स हमने बोला था, दे आर गोइंग टू डू। बट ये जो हमारे अभी हमने डिस्कस किए हैं पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, दे आर डूइंग दिस जॉब इन केस ऑफ spin space, spin angular momentum space, right? We have seen in the case of spin that if we take a rotation in Euclidean space, right, then the total angular momentum always remain invariant. ये हमने पढ़ा in BSc फर्स्ट ईयर, right? कि अगर हम जो स्पेस है ये आइसोट्रोपिक है, उसमें कोई भी रोटेशन करते हैं, then the total angular momentum is always invariant. It does not change. But for example, let's take an electron. We know electron has a spin quantum number 1/2 and it has 2 spin possibilities. Spin angular momentum can take 2 values, plus 1/2 h cut and minus 1/2 h cut. Now, what is the meaning of it? Meaning of it is very simple, that if I want to transform the system from one electron to another, then I need some transformation operator. तो ये जो polyspin matrices हैं, these are doing this work. They are transforming the system from one electron to another electron. Total angular momentum तो constant ही रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन का total angular momentum है, but the z component of angular momentum है sz, that will be changed from a plus to minus, right? So here these polyspin matrices are doing this job. These are generators, right? अब SU2 जो हमारा ग्रुप था, this is the collection of these 3 generators plus 1 identity matrix. तो हमें इतनी बात समझ आ गई कि जनरेटर्स क्या हैं और फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं। यहां तो 4 हैं, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगी, तो 2 रिप्रेजेंटेशन होंगी फंडामेंटल, राइट? वन विद इलेक्ट्रॉन स्पिन प्लस 1/2 h कट एंड अनदर विद द इलेक्ट्रॉन स्पिन माइनस 1/2 h कट। और जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक से दूसरे में, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट ये बात हो रही है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की इन इक्विलिडियन स्पेस। अब मैं एक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं जिसको हम रोटेशनल मैट्रिक्स करते हैं। कैसे ये चेंज करते हैं? तो वी हैव सीन कि अगर मैं, जैसे ये हमने एक इक्विलिडियन स्पेस ले रखा हो, बट इट इज 2 डायमेंशनल। इफ आई वांट टू गो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन इन दिस इक्विलिडियन स्पेस, then this job can be done with the help of a rotational matrix, and that matrix will be given as a cos theta minus sin theta and sin theta cos theta into x by, और ये यहां पे x dash y dash. I mean, if I want to go from here to here, then this operation, this rotational matrix will transform the system from this location to this location in the 2-dimensional Euclidean surface. This is the role of this rotational matrix. Now ये same काम जो है, that is going to be done by these polyspin matrices. They are going to transform the system in the respective space. ये तो जस्ट हम समझने के लिए रोटेशनल स्पेस, रोटेशनल मैट्रिक्स का केस ले रहे हैं इक्विलिडियन स्पेस में, और ये 3 डायमेंशंस के ऊपर भी वी कैन हैव अ रोटेशनल मैट्रिक्स, वी कैन गो टू दैट टॉपिक।
but rotational matrices can do this job of transforming a system from one location to another in the given space, right? अब ये दूसरी बात हो गई, और हमने देखा था कि कैसे ये जो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं इनको जर्नल फॉर्म में हम SU2 ग्रुप्स जो हैं, आई कैन रिप्रेजेंट देम इन जर्नल फॉर्म एज U इज इक्वल टू E रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा जे इंटू सिग्मा जे, या कई बार आई भी ले लेते हैं, जे इज इक्वल टू 1 2 3, तीन है हमारे पास पॉसिबिलिटी। तो दिस इज द जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU2 ग्रुप, ये हमने पढ़ा था SU2 में, राइट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस। यहां पे सिग्मा क्या है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं तीन, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, राइट? सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप that is going to transform the system from one location to another, right? So this is the SU2 group. अब मैं एक और चीज पे आता हूं इंपॉर्टेंट पे, दैट इज नोएडा थ्योरम, right? That was given by mathematician, I am showing you here pic, this is the Noether's theorem that was given by Emily Noether, right? You can see here the pic, Emily Noether. She was a German mathematician, right? अब ये जो Noether theorem है, it is very very important theorem, and it states that when we have a symmetry in a particular system, we have a symmetry property in a particular system, then that symmetry property always leads to a conservation loss, right? तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरियंस ऑफ स्पेस है, जिसको हम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस बोलते हैं, दैट लीड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रोटेशनल इनवेरियंस मींस आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस leads to law of conservation of angular momentum, and homogeneity of time leads to law of conservation of energy. So all these are following the Noether's theorem that was given by Emily Noether in I think it was given by in 1935, right? तो अब ये जो थ्योरम मैं बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जब भी हमें कहीं पे भी कोई किसी तरह की सिमेट्री होगी, राइट, किसी भी सिस्टम में, दैट सिमेट्री विल ऑलवेज लीड्स टू अ कंजर्वेशन लॉ। तो जैसे मैंने बोला कि रोटेशनल सिमेट्री है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हमने देखा वो। अब इसी कॉन्सेप्ट को, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं हाई एनर्जी फिजिक्स में। अब मैं आता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखें तो दोनों के दोनों क्या है, लगभग 99.99%, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को इग्नोर कर दूं या चार्ज को इग्नोर कर दूं, तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है लगभग वो एक ही चीज है। कैसे? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो डिफरेंशिएट नहीं करती है, इक्वली काम करती है इन तीनों पेयर्स के ऊपर, राइट? और अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बाकी प्रॉपर्टी, मास देखूं, तो जैसे जो हमारा न्यूट्रॉन है उसका मास होता है 939.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, अपॉन सी स्क्वायर। और अगर प्रोटॉन का देखें तो 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मास तो लगभग 99.99% सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली तो नहीं, बट सेम मास है दोनों का, स्पिन सेम है, बस चार्ज का डिफरेंस है, चार्ज को इग्नोर कर दो। तो अगर हम, क्योंकि और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो हैं वो चार्ज के इंडिपेंडेंट है, मैंने बताया, वो इक्वली काम करती हैं इन सभी के बीच में। इट मींस द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर टू पिक्चर्स, ये जो हैं, दीज आर द टू पिक्चर्स ऑफ द सेम थिंग, राइट? यहां पे सिर्फ दो है, यहां पे तो अलग अलग ट्राइंगल लिए थे मैंने। इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी एक ही चीज की दो पिक्चर हैं, जिसको हाइजेनबर्ग ने बोला था कि दीज आर नोन एज न्यूक्लियन, राइट? न्यूक्लियन वर्ड बोला, न्यूक्लियन इज द नेम गिवन टू दीज टू कॉन्फ़िगरेशंस। और इन कॉन्फ़िगरेशंस के अलग अलग अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे बिकम्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में दे आर एग्जैक्टली सेम। इट मींस नाउ आई शुड कंस्ट्रक्ट दिस इंटायर फ्रेमवर्क फॉर दीज टू न्यूक्लियंस।
such that I can go from neutron to proton or proton to neutron. तो इसी चीज को ध्यान में रख के यू हैव लर्नड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्पिन, राइट? नाउ आइसोस्पिन या आइसोटॉपिक स्पिन जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया, दैट वाज एग्जैक्टली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन इन इक्विलिब्रियम स्पेस। मैंने बताया था आपको सारी चीजें ये। अब जो आइसोस्पिन है, हमें पता है कि आइसोस्पिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, राइट? और ये जो न्यूक्लियन ग्रुप है उसके लिए होती है 1/2, न्यूट्रॉन के लिए होती है -1/2, आई जेड कंपोनेंट है, और प्रोटॉन के लिए जेड कंपोनेंट होता है +1/2। ये इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनकी टोटल आइसोस्पिन तो 1/2 है, और जो जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, जस्ट लाइक द स्पिन जो SZ बोल रहे थे, वो दोनों का अलग अलग है। तो सेम एनालॉजी हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें कुछ जनरेटर्स चाहिए जो ट्रांसफॉर्म करें हमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन या फिर वाइस वर्सा, जिस तरह से हम यहां कर रहे थे। तो ये सारा का सारा जो वर्क है, इट इज डन बाय द SU2। इट कम्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ SU2। जो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स हमारे इन 2 डायमेंशंस हैं, दे आर डूइंग दिस जॉब। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इन द आइसोटॉपिक स्पिन स्पेस। अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं यहां पे, आइसोटॉपिक स्पिन स्पेस, क्योंकि ये जो बात हम कर रहे थे इक्विलिब्रियम स्पेस में, राइट? जो मैंने आपको दिखाया था। पर अब जो हम स्पेस इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ये, दैट इज आइसोटॉपिक स्पिन। आइसोटॉपिक स्पिन स्पेस मींस, और उस आइसोटॉपिक स्पिन स्पेस में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, दे विल बी इनवेरिएंट। कैसे? क्योंकि आप देखो यहां पे हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर टोटल आइसोस्पिन क्या है? इट इज ऑलवेज डेल आई इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है कंजर्वेशन लॉज में कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है तो टोटल आइसोस्पिन ऑलवेज रिमेन इनवेरिएंट। बट जो जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, इट कैन चेंज। del I is not equal to 0. This is very very important. तो सेम एनालॉजी कि जब हम आइसोटॉपिक स्पिन में देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इट इज इनवेरिएंट इन दिस आइसोटॉपिक स्पिन स्पेस, राइट? सो अगर वो इनवेरिएंट है, देन वी मस्ट हैव अ कंजर्वेशन लॉज, एंड कंजर्वेशन लॉ इज दिस, राइट? सो ये जो SU2 सिमेट्री हमारी है, दैट इज गोइंग टू डू द सेम जॉब। इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। तो हमारे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, ये इस तरह से होंगे, एक एज पे जैसे +1/2 और -1/2, राइट? डबलेट, जिसको हम डबलेट बोलते हैं, दिस इज न्यूट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन। और ये जो हमारा SU2 ऑपरेशन होगा, द मैट्रिक्स वी आर रिप्रेजेंटिंग, दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म this one state of nucleon to another or vice versa, right? But the total isospin, it is always going to remain constant in this space, right? क्यों? क्योंकि दोनों के लिए 1/2 है। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे हम? तो उसके लिए जो न्यूक्लियन है हमारा, उनको हम एक 2 डायमेंशनल 1 कॉलम मैट्रिक्स से, 2 कंपोनेंट 1 कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा। तो यहां पे एक के लिए हम ले लेते हैं, जैसे प्रोटॉन के लिए ले लेते हैं स्टेट 1 0, और दूसरे के लिए ले लेते हैं न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0 1 कॉलम मैट्रिक्स। सो देन हाउ आई विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन? सिंपली बाय टेकिंग e⁻∰ सिग्मा j थीटा j माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस ग्रुप अल्फा बीटा। So it will transform me to either a proton or a neutron depending upon the initial position, that is neutron or a proton. अगर न्यूट्रॉन से मैंने प्रोटॉन में जाना है, this SU2 group is going to do the task. But what we have to do? We have to multiply with this representation, right? This is the representation of a nucleon by a column matrix that has 2 component alpha beta. तो हमने अपनी तरफ से, इसको हम स्पिनर भी बोलते हैं, अपनी तरफ से हमें 2 वैल्यू असाइन कर दी, 1 और 0 0 1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन और फिर वाइस वर्सा। तो ये जो सारी की सारी है हमारी रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज SU2, राइट? स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स इन 2 डायमेंशंस। तो यही जो हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पाई मीजोन का केस ले लूं, तो वी नो वेरी वेल दैट हमारे पास 3 पाई मीजोन होते हैं, पाई पॉजिटिव, 0 और पाई नेगेटिव, और तीनों का मास भी लगभग सेम होता है। और यहां पे भी क्या है? सो वी कैन से दैट these 3 आर द 3 ट्रायंगल्स। ये जो मैंने बोला, ये 3 ट्रायंगल हैं। एक को हम बोलेंगे
पाई पॉजिटिव, एक को बोलेंगे पाई नॉट और दूसरे को बोलेंगे पाई नेगेटिव। तो इसमें दिस इज द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन देन ऑफ दिस ग्रुप। तो अगर हम एक से दूसरे में जाना चाहें, दूसरे से दूसरे में, अगेन द सेम रूल, बट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द आइसोटॉपिक स्पिन स्पेस, जो कि ये बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, फिर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा यहां पे। अब तो मैं यहां पे लेता हूं आपके लिए, कन्वीनियंस के लिए, ये आ गया। अब यहां पे अब जो हमारे पास तीन पोजीशंस रहेंगी, दीज आर आई जेड ले रहे हैं। देखो एक तो बात आपने याद रखनी, यहां पे आई जेड इस डायरेक्शन में, तो आई जेड अब क्या होगा, +1 0 और यहां पे -1। तो यहां पे आपका ये आइसोटॉपिक स्पिन स्पेस है। यहां पे आपका आएगा पार्टिकल पाई नॉट, यहां पे आएगा पाई पॉजिटिव और यहां पे आएगा पाई नेगेटिव। एंड हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस ट्रिपलेट, नाउ इट इज ए ट्रिपलेट। सो अल्फा बीटा गामा तीन हो जाएंगी, जो कॉलम मैट्रिक्स विल हैव 3 कंपोनेंट्स एंड दीज विल बी रिप्रेजेंटेड एज पाई पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 0 0 एंड पाई नॉट इज इक्वल टू 0 1 0 एंड पाई नेगेटिव इज इक्वल टू 0 0 1। तो इस तरह से अगेन सेम रूल, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम वन टू अनदर, व्हाट आई हैव टू डू, e raised to power iota minus sigma j theta j into अल्फा बीटा गामा। जो भी जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन को आप करना चाहेंगे, पाई +0 माइनस से यहां पे यू विल बी रीच्ड एट पाई -0 और पॉजिटिव। आई मीन इन दिस फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो तीन हमारे पार्टिकल, तीन जो ट्रायंगल्स हैं, एक से दूसरे में जाना चाहें, दिस इज द प्रोसेस। और ये काम कौन कर रहा है हमारा, दिस इज द SU2, राइट। SU2 जो ग्रुप है हमारा, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स इन 2 डायमेंशंस, और इट इज जनरेटिंग अ सिमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बात तो यही की थी SU2 सिमेट्री इन पार्टिकल फिजिक्स। तो यहां पे बन रही है सिमेट्री। सिमेट्री कौन सी, SU2 सिमेट्री ऑफ आइसोटॉपिक स्पिन, राइट। तो आइसोटॉपिक स्पिन सिमेट्री है, तो आइसोटॉपिक स्पिन सिमेट्री में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आर इनवेरिएंट। इनवेरियंस क्या हुई, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की। यहां पे भी दोनों ही एक ही चीज है। तो जो मैंने नॉइदर थ्योरम की बात की वो यही थी कि whenever we have a symmetry related to a particular property of the system, it gives us a corresponding conservation law. Rotational symmetry, conservation of angular momentum. So here isospin symmetry, law of conservation of total isospin. But we can go from one member to another by simply applying this transformation translational matrix operation, that is SU2, right. तो ये बाकी के जो हेड्रॉन्स ग्रुप हैं उनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। So this is about the SU2 symmetry in particle physics. It is very very important and this is valid only for these representations of doublets and triplets, right. क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर कर रहे हैं, IZ is only changing. We are going from one to another, जैसे कि हम स्पिन के केस में SZ को चेंज करते थे, right. So this is about the SU2 symmetry in particle physics. So thank you very much.